My dear students, I would like to explain one problem of previous years, that is 2016, in simplest possible manner. There is an ice piece falling from certain height, and before touching the ground, it gets melted. One fourth of the mass is getting melted here. Then what is the height from which the ice piece is falling? That is the question. Here, potential energy is getting converted into heat energy. Energy is conserved. Then potential energy, we write it as mgh, and heat energy, we write mass into latent heat. But it is said that one fourth of the heat produced is absorbed because it is falling from certain height. There is a frictional force which makes the ice piece to get melted. So we write one fourth. Okay. So what is going to happen? Mass getting cancelled. He's asking us to find out the height. So therefore, height is going to be 4L by G. Where L is said to be latent heat, it is given the latent heat here, that is, it is 3.4 into 10 power 5 divided by G, which is taken as 10. So after solving this one, you get 136 kilometers as the answer. That's my dear friends. You are worrying very much about the problems of fluid mechanics. Many students will feel fluids, will create fluids in your eyes. So here's a very simple method I'm going to teach you. Okay. So you all know he is asking us to find out what is the density of an oil. Okay. Density of an oil. You all know pressure is equal to HdG, and G is going to be constant. And atmospheric pressure is also going to be constant. Then here his density is inversely proportional to height. Density of oil by density of water is equal to height of water by height of oil. Okay. So density of oil and density of water, it is 1000, is equal to height of the water, which is 15, and height of oil, it is going to be 20. If you solve this one, you'll be getting 750. Such a simple method. Hope you understand. Hey, you always telling that you got shortcuts, but do you have a shortcut for this problem of fluid mechanics? Then go ahead. I want this problem to be solved in a single step. If you have got a doubt, don't shout. Come here. Come here. Don't fear. I'll make you clear. Jump like a deer, eat like a bear. Just see. This is the problem. You got a doubt. You want me to solve in a single step. Yes. He is asking us to find out the density of an oil in this U tube. Okay. So simple thing is, you know the pressure formula. Pressure is equal to HdG. At this place, the both open ends of a new tube is having an atmospheric pressure that is also same. So that should be removed. A G is same, that also should be removed. Then here he is asking us to find out the relation between density and height. Density is inversely proportional to height. So therefore, density of oil by density of water is equal to height of water by height of oil. So density of oil, density of water, it is 1000, and height of water, if you see here, 65 plus 65 is going to be 130, and height of oil, it is from here to here, 65 plus 10, which is going to be 140. You just simplify this one and do, you'll get the answer as 928. That's it. So simple it is. जिस प्रॉब्लम का इतना बड़ा सॉल्यूशन है, उसको अगर मैं सेकंड्स में सॉल्व कर दूं तो आप खुश होंगे। अभी देखो इसका, यहां पर देखो दो लिक्विड्स है यूट्यूब के अंदर, दो लिक्विड्स है यूट्यूब के अंदर, एक का डेंसिटी ज्यादा है, एक का डेंसिटी कम है। जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा कंप्रेस्ड होगा, और जिसका डेंसिटी कम है वो कम कंप्रेस्ड होगा, उसका हाइट भी ज्यादा होगा। इससे क्या समझ में आ रहा? एक लॉजिक को पकड़ो। क्या है वो लॉजिक? हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जिसका हाइट ज्यादा उसका डेंसिटी कम। तो हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ रहा ना, डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछ रहा। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर बाय हाइट ऑफ ऑयल। अब डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया, हाइट ऑफ लिक्विड और वाटर दे दिया, सब्स्टिट्यूट करो और ऑयल मालूम करो। एक तो चीज क्या है, अगर वाटर का डेंसिटी 1000 है तो लिक्विड का उससे भी कम होगा, और इन चार ऑप्शंस में सबसे कम वाला यही है। आंसर बगैर करेगी भी डाल सकते हैं। अगर डालना चाहे तो कैलकुलेट करो, अगर और होशियार है आप लोग तो फिर देख के भी डाल सकते हैं। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, 30 मिनट के कॉन्सेप्ट को 3 मिनट में समझाना
यही हमारा मिशन है। नीट 2026 में 120 प्लस मार्क्स लाने वाला मिशन को हमने ठान लिया है। अभी देखो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रॉब्लम तो दिया गया है। इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए उसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले डिस्टेंस एवरेज स्पीड और नेक्स्ट क्या है, टाइम एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड के अंदर डिस्टेंस सेम रहता और टाइम एवरेज स्पीड के अंदर टाइम सेम रहता, ठीक है। और वेलोसिटी तो डिफरेंट रहता है यहाँ पर। तो पहला आधा डिस्टेंस अगर कोई बॉडी v1 स्पीड से जा रही और नेक्स्ट आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से जा रही, इसका मतलब क्या, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं इसको आपको। पहला 30 किलोमीटर और दूसरा 30 किलोमीटर समझो। पहला 30 किलोमीटर अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा और दूसरा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, इसको बोलेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड। क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम है तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड, अगर टाइम सेम है तो टाइम एवरेज स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस एवरेज स्पीड, इसको कैसा करना है अभी। जनरल फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब इन सारे प्रॉब्लम के अंदर कहीं भी टाइम के बारे में डिस्कशन है ही नहीं, टाइम को रिप्लेस कर दो। तो यहां पर डालेंगे d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। टाइम को हमने रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस और वेलोसिटी से। और d1 d बाई टू है, d2 भी d बाई टू है, ओके। तो अभी क्या करेंगे यहां पर, जस्ट राइट इन द प्लेस ऑफ d1 क्या लिखेंगे, d बाई टू लिखेंगे, फिर से d बाई टू लिखेंगे, फिर से d बाई टू बाई v1 लिखेंगे, फिर से d बाई टू बाई v2 लिखेंगे। तो v एवरेज d बाई टू अगर कॉमन कर दिए तो 1 प्लस 1 हो गया। यहां पर भी d बाई टू कॉमन कर दिए तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 हो गया। तो चलेगा d बाई टू d बाई टू। अब यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा और नीचे एलसीएम क्या होगा, v1 v2, ऊपर क्या होगा v1 प्लस v2 अगर एलसीएम लेने के बाद। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके इस प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर भी क्या है, पहला आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से जा रहा v, और नेक्स्ट आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से जा रहा v2 से जा रहा। और v1 कितना है, v है, v2 कितना है 2v। तो सेम फॉर्मूला डालेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2 इंटू v इंटू 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 2v। तो ये हो गया 4v स्क्वायर बाई 3v। तो चले जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 4v बाई 3 इसका सोल्यूशन है, समझे प्यारे बच्चों। नीट का 2017 का प्रॉब्लम है एस्केलेटर का प्रॉब्लम, इसको हम सिंपल वे में समझाएंगे। देखो यहां पर प्रीति है और एस्केलेटर है, नीचे एस्केलेटर ऊपर प्रीति। अगर प्रीति के अंदर वेलोसिटी है और एस्केलेटर रेस्ट में है तो टाइम कितना लगेगा, t1 लगेगा। और प्रीति रेस्ट में है, एस्केलेटर मूव हो रहा, तो प्रीति को यहां से वहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, t2। प्रीति भी मूव हो रही है और एस्केलेटर भी मूव हो रहा है, तो टाइम लगेगा t, ठीक है। अब इन तीनों का रिलेशन पूछ रहा, समझे नहीं। ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द एस्केलेटर व्हेन बोथ आर मूविंग। बोथ अगर मूव हो रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, दोनों को ऐड करेंगे सबको, उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो यहां पर तीनों जगह पर डिस्टेंस सेम है, तो यहां पर क्या हो गया, प्रीति के पास डिस्टेंस सेम है और टाइम क्या है, दो भी मूव हो रहे तो टाइम टी, और यहां पर डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी टाइम टेकन बाय द प्रीति कितना है t1, और d सेम है और टाइम टेकन बाय द एस्केलेटर कितना है t2। तो d कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, t1 t2 बाई t1 प्लस t2। ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका आंसर। ये सिंपल वे में समझा रहा हूं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स को भी सबसे आसान तरीके में मैं समझाऊंगा। यहां पर देखो xp दिया और xq भी दे दिया, ठीक है, दे दिया। और क्या बोल रहा, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम एट विच द टू कार्स आर हैविंग सेम वेलोसिटी। देयर आर टू कार्स, यहां पर दो कार है p और q, और दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ p विल बिकम हाउ मच, तो यहां पर ये आएगा और यहां पर 2bt आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, और यहां पर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी क्यू क्या आएगा, एफ माइनस 2t आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटीज आर सेम बोल के बोल रहा है। इसका मतलब vp इज इक्वल टू vq, दोनों को इक्वल करेंगे
ये प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t, ठीक है। तो यहां पर 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ये, अगर t कॉमन करेंगे तो क्या हो गया, एफ माइनस ये डिवाइडेड बाई 2 कॉमन कर देंगे तो b कॉमन करेंगे तो b प्लस 1 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, डी ऑप्शन, ठीक है। प्यारे बच्चों, 1 या 2 मिनट के अंदर आपको 3 प्रॉब्लम्स करना सिखाऊंगा, फास्टेस्ट सॉल्विंग मेथड। अभी देखो ये वाले प्रॉब्लम्स है, 2 प्रॉब्लम्स है और यहां पर एक प्रॉब्लम है, और यहां पर इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा सबसे पहले आपको। देखो डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, वो पहला आधा डिस्टेंस स्पीड v1 से जाएगा और दूसरा आधा डिस्टेंस स्पीड v2 से जाएगा। ये केस 1 है। दूसरा केस क्या है, यहां पर x से लेकर y तक जाएगा, सेम डिस्टेंस d, स्पीड v1, फिर दोबारा y से लेकर x तक आएगा, वापस दूसरे स्पीड से आएगा, अलग स्पीड से आएगा, जाने वाला स्पीड अलग है, आने वाला स्पीड अलग है, डिस्टेंस सेम है, यहां पर भी डिस्टेंस सेम है, यहां पर भी दोनों डिस्टेंस सेम है। इस तरह के केसेस को हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, देखो एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन है। तो v एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस से सेम है यहां पर, तो डालेंगे d प्लस डी। अब यहां पर टाइम तो दिया नहीं और टाइम को रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड से, तो यहां पर डालेंगे d बाई v1 प्लस d बाई v2। तो d को कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो यहां पर आएगा 1 प्लस 1, यहां पर d पर कॉमन करेंगे 1 प्लस v1 1 बाई v2, dd चले जाएगा, v एवरेज तो ये बनेगा 2, नीचे होगा v1 v2 और ऊपर बनेगा v1 प्लस v2। तो आपका फॉर्मूला तैयार है v2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हो गया डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करके हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, x टू y और y टू x रिटर्न आएगा दूसरे स्पीड से, तो हमारा फॉर्मूला तैयार है यहाँ पर। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर, 2v1 v2 by v1 plus v2, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर सेम है, तो यहाँ पर 40 दिया और दूसरा स्पीड जो है नहीं मालूम, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2v1 v2 by v1 plus v2 यूज करेंगे और एवरेज स्पीड मालूम करेंगे। अब ये यहाँ पर सेम प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है बस। तो 2v1 v2 यहाँ पर 40 दिया और एक 60 दे दिया, तो डालेंगे 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40 हो गया 100, विच इज एवरेज स्पीड। तो ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, 6 4 24, 48 बाई 100, तो क्या हो गया 48 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। यहां पर क्या दिया मालूम आपको, 40 दिया, दूसरा स्पीड नहीं दिया, मगर एवरेज स्पीड दे दिया 48, मतलब ये दे दिया और 40 दिया, तो उसका दूसरा आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 60। तो आपका आंसर है 60। 40 दिया, v2 नहीं दिया, मतलब v2 60, 40 इंटू 60, अगर ये कॉम्बिनेशन 60 40 का हमेशा 48 देगा, ठीक है। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत स्पीड और फास्ट। प्यारे बच्चों, ग्राफ्स को समझने का सबसे आसान तरीका मैं समझाऊंगा आप लोगों को। पूरे के पूरे 5 के 5 नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और हम आपको 2 मिनट में समझाएंगे। अभी देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज बोल के पूछ रहा, तो यहां पर वेलोसिटीज क्या है, ओके। तो ग्राफ के अंदर वेलोसिटी मालूम करना है तो स्लोप मालूम करना है, स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब यहां पर रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बोल के पूछ रहा, ठीक है। तो 30 और 45 डिग्रीज का, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज v30 डिवाइडेड बाय v45, विच इज नथिंग बट tan 30 1/√3 और tan 45 1, तो आपका रेशियो क्या हो गया 1/√3, आपका आंसर हो गया पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन, यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहां पर है, तो ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल के बोलते हैं। तो वेलोसिटी विल बिकम tan थीटा। तो अगर यहां पर सारे के सारे ग्राफ्स देख लो, इनका एंगल को ऑब्जर्व करो, एंगल को, ये तो नेगेटिव ग्राफ है। अब यहां पर अगर एंगल ऑब्जर्व करें ना, तो थीटा कम होते जा रहा, दैट मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा, थीटा अगर कम हो रहा तो वेलोसिटी भी कम हो रहा, मतलब ये वाला केस क्या है, डीजलरेशन का केस है। यहां पर ऑब्जर्व करो ना, तो यहां पर थीटा इंक्रीज हो रहा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा, इसका मतलब इट्स अ केस ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहां पर अच्छी तरह से देखो, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है मतलब v इज इक्वल टू tan थीटा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, समझ में आ रही बात। तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है यहां पर, तो सिर्फ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या पूछ रहा, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर है, तो इसका मतलब ये पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है वो पे वहां पर मैक्सिमम की एंगल सबसे ज्यादा हो। तो ऑब्जर्व करें ना, तो सी का एंगल सबसे ज्यादा है बाकी के एंगल से, ये भी छोटा है
ये भी थोड़ा कम है, मगर सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ क्या है, सी है, तो आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर क्या पूछ रहा, नेगेटिव कौन सा पॉइंट है, तो सबसे नेगेटिव ये वाला है, क्योंकि नीचे की तरफ है स्लोप इसका। बाकी के सब जो है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ ये है, तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो लास्ट फाइनल यहां पर देख लो, विच इज रिप्रेजेंटिंग वन डायमेंशन। तो सबके सब ग्राफ्स ठीक है, एक ग्राफ के अंदर गलती नजर आ रही, क्या है वो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के पास अगर ले लिए ना, तो यहां पर भी वेलोसिटी है, यहां पर भी वेलोसिटी है, एक ही टाइम के अंदर बॉडी को दो वेलोसिटीज कभी हो नहीं सकते। इसका मतलब सबसे गलत ग्राफ कौन सा है, बी वाला ग्राफ सबसे गलत ग्राफ है। ठीक है, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ग्राफ्स को समझने का सबसे आसान तरीका मैं समझाऊंगा आप लोग। पूरे के पूरे 5 के 5 नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और हम आपको 2 मिनट में समझाएंगे। अभी देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज बोल के पूछ रहा, तो यहां पर वेलोसिटीज क्या है, ओके, तो ग्राफ के अंदर वेलोसिटी मालूम करना है तो स्लोप मालूम करना है, स्लोप का मतलब tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। अब यहां पर रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बोल के पूछ रहा, ठीक है, तो 30 और 45 डिग्रीज का, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज v30 डिवाइडेड बाय v45 विच इज नथिंग बट tan 30 1/√3 और tan 45 1, तो आपका रेशियो क्या हो गया, 1/√3 आपका आंसर हो गया, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन, यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहां पर है, तो ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल के बोलते हैं, तो वेलोसिटी विल बिकम tan थीटा। तो अगर यहां पर सारे के सारे ग्राफ्स देख लो, इनका एंगल को ऑब्जर्व करो, एंगल को, ये तो नेगेटिव ग्राफ है। अब यहां पर अगर एंगल ऑब्जर्व करें ना, तो थीटा कम होते जा रहा, दैट मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा, थीटा अगर कम हो रहा तो वेलोसिटी भी कम हो रहा, मतलब ये वाला केस क्या है, डीजलरेशन का केस है। यहां पर ऑब्जर्व करो ना, तो यहां पर थीटा इंक्रीज हो रहा, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा, इसका मतलब इट्स अ केस ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहां पर अच्छी तरह से देखो, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है मतलब v इज इक्वल टू tan थीटा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, समझ में आ रही बात, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है यहां पर, तो सिर्फ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन है। तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर क्या पूछ रहा, नेगेटिव कौन सा पॉइंट है, तो सबसे नेगेटिव ये वाला है, क्योंकि नीचे की तरफ है स्लोप इसका। बाकी के सब जो है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ ये है, तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो लास्ट फाइनल यहां पर देख लो, विच इज रिप्रेजेंटिंग वन डायमेंशन। तो सबके सब ग्राफ्स ठीक है, एक ग्राफ के अंदर गलती नजर आ रही, क्या है वो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के पास अगर ले लिए ना, तो यहां पर भी वेलोसिटी है, यहां पर भी वेलोसिटी है, एक ही टाइम के अंदर बॉडी को दो वेलोसिटी कभी हो नहीं सकते। इसका मतलब सबसे गलत ग्राफ कौन सा है, बी वाला ग्राफ सबसे गलत ग्राफ है। ठीक है, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ग्राफ्स को समझने का सबसे आसान तरीका मैं समझाऊंगा आप लोग। पूरे के पूरे 5 के 5 नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और हम आपको 2 मिनट में समझाएंगे। अभी देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज बोल के पूछ रहा, तो यहां पर वेलोसिटीज क्या है, ओके, तो ग्राफ के अंदर वेलोसिटी मालूम करना है तो स्लोप मालूम करना है, स्लोप का मतलब tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। अब यहां पर रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बोल के पूछ रहा, ठीक है, तो 30 और 45 डिग्रीज का, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज v30 डिवाइडेड बाय v45 विच इज नथिंग बट tan 30 1/√3 और tan 45 1, तो आपका रेशियो क्या हो गया, 1/√3 आपका आंसर हो गया, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन, यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहां पर है, तो ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल के बोलते हैं, तो वेलोसिटी विल बिकम tan थीटा। तो अगर यहां पर सारे के सारे ग्राफ्स देख लो, इनका एंगल को ऑब्जर्व करो, एंगल को, ये तो नेगेटिव ग्राफ है। अब यहां पर अगर एंगल ऑब्जर्व करें ना, तो थीटा कम होते जा रहा, दैट मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा, थीटा अगर कम हो रहा तो वेलोसिटी भी कम हो रहा, मतलब ये वाला केस क्या है, डीजलरेशन का केस है। यहां पर ऑब्जर्व करो ना, तो यहां पर थीटा इंक्रीज हो रहा, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा, इसका मतलब इट्स अ केस ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहां पर अच्छी तरह से देखो, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है मतलब v इज इक्वल टू tan थीटा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, समझ में आ रही बात, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है यहां पर, तो सिर्फ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या पूछ रहा, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर है, तो इसका मतलब ये पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है, वो पे वहां पर मैक्सिमम की एंगल सबसे ज्यादा हो, तो ऑब्जर्व करें ना, तो सी का एंगल सबसे ज्यादा है, बाकी के एंगल से ये भी छोटा है, ये भी थोड़ा कम है, मगर सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ क्या है, सी है, तो आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर क्या पूछ रहा,
नेगेटिव कौन सा पॉइंट है, तो सबसे नेगेटिव ये वाला है, क्योंकि नीचे की तरफ है स्लोप इसका, बाकी के सब जो है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ ये है, तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो लास्ट फाइनल यहां पर देख लो, विच इज रिप्रेजेंटिंग वन डायमेंशन। तो सबके सब ग्राफ्स ठीक है, एक ग्राफ के अंदर गलती नजर आ रही, क्या है वो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के पास अगर ले लिए ना, तो यहां पर भी वेलोसिटी है, यहां पर भी वेलोसिटी है, एक ही टाइम के अंदर बॉडी को दो वेलोसिटीज कभी हो नहीं सकते। इसका मतलब सबसे गलत ग्राफ कौन सा है, बी वाला ग्राफ सबसे गलत ग्राफ है। ठीक है, हर प्रॉब्लम को सबसे आसान और सटीक तरीका मैं आपको समझाऊंगा। हमारा मिशन है कि 2 महीने के अंदर भी हम 120 प्लस ला सके फिजिक्स के अंदर। तो यहां पर देखो, ऊपर जो है ना कॉपर रॉड दिया, नीचे जो है एल्यूमिनियम रॉड दे दिया, दोनों का अल्फा भी दे दिया। अब लेंथ ऑफ कॉपर रॉड दिया, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड कितना बोल के पूछा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। यहां पर दो चीजें कांस्टेंट है, क्या है वो, लेंथ इज इंडिपेंडेंट बोल रहा है, इंक्रीज इन द लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बोल रहा है, इंक्रीज इन द लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये दोनों को उखाड़ के फेंक दो। अब और क्या समझ में आ रहा है, यहां पर लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, सो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बाय लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू अल्फा ऑफ कॉपर बाय अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हमको लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम मालूम करना है, तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज अल्फा ऑफ कॉपर बाय अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ ऑफ कॉपर। ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अब सारे के सारे वैल्यूज आपके पास है। अब अच्छी बात क्या है मालूम, जिसका अल्फा ज्यादा है उसका लेंथ कम होगा, ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है। ओके, तो इस बगैर सॉल्व करेंगे भी हम बोल सकते हैं कि आंसर कितना होगा, 68 होगा। क्यों, अल्फा इसका ज्यादा है तो लेंथ कम होगा, अगर सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी आएगा आपको 68 सेंटीमीटर। चाहे तो आप करके देख लो। अरे बच्चों, किस तरह 2 महीने के अंदर हम 120 प्लस ला सकते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़े टिप्स बताऊंगा, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ अलग ढंग से। तो यहां पर देखो, he has given the coefficient of volume expansion दे दिया और राइज इन टेम्परेचर दे दिया, और क्या पूछ रहा, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी बोल के पूछ रहा, और हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बोल रहा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो इंटू डेल्टा टी। फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी का मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट डेल्टा रो बाई रो विच इज नथिंग बट गामा डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, गामा को राइज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको जो है राइज इन टेम्परेचर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, तो आपका सोल्यूशन आएगा 0.020। दैट्स इट। ठीक है, बस करना कुछ भी नहीं, दोनों को प्रोडक्ट करना है, दोनों वैल्यूज को प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना आसान है प्यारे बच्चों, हर प्रॉब्लम के लिए इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप लोग जो है ना खुश हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर दो स्केल्स दिया क्वेश्चन के अंदर, एक तो डब्ल्यू स्केल बोल रहा है, एक नया स्केल है, और एक सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस स्केल के दो वैल्यूज हमें ऑलरेडी मालूम है, 0 और 100। ठीक है, नेक्स्ट, अब सेल्सियस स्केल के अंदर अगर 39 दिया तो ये डब्ल्यू स्केल के अंदर क्या होगा, जिसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट दे दिया 39 और 239 बोल के दे दिया। अब हमको क्या करना है मालूम, सेल्सियस स्केल अगर 39 है तो डब्ल्यू स्केल के अंदर कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमारा आसान सोल्यूशन क्या है मालूम, आसान फॉर्मूला, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय हायर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर रीडिंग क्या है, डब्ल्यू, लोअर मतलब 39 डिवाइडेड बाय 239 माइनस 39 इज इक्वल टू रीडिंग यहां पर क्या है, सी, सी यानी कि 39 माइनस 0 बाय 100 माइनस 0। ठीक है, अब इसको यूज करके हमको W मालूम करना है, W को कैलकुलेट करना है सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आपका W आएगा 117 डिग्री। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है 2007 का। यहां पर थर्मोकपल दिया गया है और टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन है, और यहां पर क्या पूछ रहा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूट्रल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन बोल के पूछ रहा। तो न्यूट्रल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है यहां पर, इट इज एन एवरेज ऑफ इन्वर्शन टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर डिवाइड बाय 2। तो यहां पर न्यूट्रल टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्वर्शन टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर क्या है, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 बोल के दे दिया। ठीक है, इट इज गिवन दैट इट इज 0 डिग्री, तो यहां पर इसको डालने की जरूरत नहीं है, यहां पर 0 डालने की जरूरत नहीं, बाय 2। ओके, तो इसका मतलब इन्वर्शन टेम्परेचर इज डबल टाइम्स ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर, या यू कैन राइट न्यूट्रल टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्वर्शन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। प्यारे बच्चों, यहां पर एक मेटालिक बार है और दोनों रिजिड सपोर्ट्स के बीच में फिक्स्ड है। अगर आप जब हीट करेंगे तो रॉड एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, मगर रिजिड सपोर्ट्स उसको एक्सपैंड होने नहीं देंगे। तो इस तरह यहां पर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस, और थर्मल फोर्स डेवलप होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अभी देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एफ एल बाई ये डेल्टा एल। ठीक है, इसमें से डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, एफ बाई वाई ए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के अंदर
अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का। तो इसमें से डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला क्या है, अल्फा डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, सो ये दोनों का इक्वल करेंगे क्योंकि यहां पर भी डेल्टा एल बाई एल है, ये आके इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है और ये एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा एफ बाई वाई ए विच इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये फॉर्मूला रेडी है, इसके अंदर सारे के सारे सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई एंड डाटा इज गिवन, अ सिंपल मेथड। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 स्फीयर्स है जिसका रेडियस r1 r2 है और r1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ r2 है। ठीक है, अब दोनों को हीट करें, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट का रेशियो क्या है, समझे आप। तो क्वांटिटी ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या है, एम एस थीटा। दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो स्पेसिफिक हीट, और दोनों का राइज इन टेम्परेचर सेम है 1 केल्विन। तो अभी बचा क्या, Q is directly proportional to mass, okay, where Q is directly proportional to volume because mass is equal to volume into density, and density is same because same material. Okay, so Q is directly proportional to R cube because volume is nothing but 4 by 3 pi R cube. Okay, 4 by 3 pi is constant. So this is the final relation. अभी क्या है, it is nothing but Q1 by Q2 is nothing but R1 by R2 whole cube. Okay, so what is R1 by R2? It is 1.5. ओके, 1.5 डिवाइडेड बाय 1 होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम क्या डाल सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 15 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 2 5 5 2s 5 3s। ओके, सो दिस इज 27 डिवाइडेड बाय 8 इज गोइंग टू बी योर आंसर। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा सॉल्यूशन है तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखो, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा कंप्रेस्ड होगा और जिस लिक्विड का डेंसिटी कम है वो कम कंप्रेस्ड होगा। इसका मतलब वाटर का डेंसिटी यहां पर ज्यादा है तो नीचे आएगा और ये ऑयल का डेंसिटी कम है तो उसका हाइट ज्यादा होगा। इसका मतलब लॉजिक को पकड़ो, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। Density of oil by density of water is equal to height of water by height of oil. अब density of water तो दे दिया 1000 है, ओके, और height of water कितना है देख लो, height of water 65 plus 65 130 है, height of oil कितना है 65 plus 65 और 10 ज्यादा है, इसका मतलब 140 है। बस सब्स्टिट्यूट करो, डालो, आंसर आ जाएगा 928। प्यारे बच्चों, क्या ही अच्छा होगा कि एग्जाम के अंदर आपको जो भी पढ़ा गया एग्जाम के अंदर माइंड में दिखना शुरू हो जाए, माइंड में दिखना, और जिसको देखकर आप एग्जाम में लिखना शुरू करें। इसी के ऊपर काम किया है टोनी बुजान, फादर ऑफ माइंड मैपिंग बोलते हैं, हु इन्वेंटेड माइंड मैप्स। हर चैप्टर को अगर इस तरह के आप माइंड मैप्स बना सको, ओके, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय माइंड मैप एक्सपर्ट्स टोनी बुजान। ओके, ही इज गिवन नोबेल प्राइज फॉर दैट। अंडरस्टूड। अगर आप हर चैप्टर को इस तरह के माइंड मैप्स अगर बना सके ना, तो आपका दिमाग जादू काम करेगा, जादू ही काम करेगा। सोचो, आप थोड़ी मेहनत, एक ही बार मेहनत करेंगे बस, मगर जिंदगी भर आपको इसका नफा होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखो, ये माइंड मैप को अच्छी तरह से देखो, ये ब्रेन के पैटर्न्स की तरह है। ये जो लकीरें हैं, ये जो लाइंस है, दिस इज जस्ट लाइक योर ब्रेन पैटर्न्स। ओके, तो इस तरह का डिस्कवरी, इस तरह का इन्वेंशन किसने किया, टोनी बुजान। आपको मैं उनका फेस भी बता देता हूं, ये है टोनी बुजान साहब। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ माइंड मैप्स, हु गॉट नोबेल प्राइज स्पेशली फॉर माइंड मैप्स। दैट्स इट, थैंक यू। प्यारे बच्चों, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही स्टेप में सॉल्व करना सिखाएंगे हम इंशाल्लाह। अभी देखो, एक फाइटर जेट ऊपर से जा रहा है, नीचे से जो है एयरक्राफ्ट गन से हम उसको शूट कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द एंगल हियर। ओके, सो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, यहां पर एक चीज को याद रखना जरूरी है आपको। व्हाट इज दैट, लेट अस सी हियर नाउ। एट दिस प्लेस द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट शुड बी सेम। इसका मतलब जो बुलेट यहां से निकल रहा है, सर्टेन एंगल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इनटू cos थीटा should be equal at the highest point. Highest point के पास velocity of a bullet and aircraft velocity will be same here. So what is the velocity of an aircraft? That is va. ये दोनों अगर सेम है तो फिर आंसर सही है। And he has given the velocity of a bullet. Velocity of a bullet is given as 400. Okay, तो ये 400 दे दिया, ये cos theta, and velocity of an aircraft 200 दे दिया। Okay, so दोनों हमारे पास डाटा है, this is going to be 200. Then what is angle cos theta? See, cos theta is equal to 200 by 400, which is 1 by 2.
So theta is going to be 60 and he's asking theta only. Okay. प्यारे बच्चों, हमारा शॉर्टकट का कोर्स लेने से आपका क्या फायदा है मैं आपको इस प्रॉब्लम से समझाऊंगा। अभी देखो यहां पर एक बॉडी को थ्रो किया गया थीटा एंगल से और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा, तो क्या करेंगे आप लोग, जनरली आप लोग ये करेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया मैक्सिमम हाइट और ये हो गया रेंज का आधा, इतना वाला रेंज का आधा हिस्सा, तो r/2 डालेंगे यानी कि 2h/r डालेंगे। फिर h के अंदर 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर रेंज के अंदर 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सारा सब कुछ करके यहाँ पर डालेंगे। मगर हमारा शॉर्टकट के अंदर आपको सिर्फ डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा/2, ये वाला अल्फा। ओके, तो अभी tan थीटा कितना है, 45 डिग्री दे दिया ना, तो tan 45 इज 1। ओके, तो योर आंसर इज tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। सो बस इतना सारा करेंगे तो आराम से 40 सेकंड्स लगेंगे। अगर आपको इतना सब चीज मालूम है कि ये जो है ना ये रिलेशन से काम करेगा, तो फिर आपका जो आंसर है ना सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? थैंक यू। प्यारे बच्चों, जनरली इस प्रॉब्लम को डिफरेंशिएशन यूज करके किया जाता है, मगर मैं आपको डिफरेंशिएशन के बगैर सॉल्व करके बताऊंगा इंशाल्लाह। यहां पर देख लो अच्छी तरह से, y इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन, x इक्वल टू ये वाला इक्वेशन। यहां पर अच्छी तरह से देख लो, y मतलब क्या, u sin थीटा, u sin थीटा इंटू टी, u sin थीटा के प्लेस में 8 है और u cos थीटा, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, यानी कि u cos थीटा के प्लेस में 6 है। इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो आप u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, आपको आंसर आएगा 10। सो ठीक है, यहां पर 100 आएगा तो u इज इक्वल टू रूट 100 विच इज इक्वल टू 10 आपका आंसर है। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, स्क्रॉल मत करो, शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता। आपके नीट के मार्क्स फिजिक्स के अंदर 30-40 जो आ रहे ना, वो एकदम 100 तक जा सकते। अभी भी 2 महीने के अंदर आप सही ढंग से मेहनत कर ले तो क्यों, उसका एक रीजन मैं बताता हूं। देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो यहां पर क्या दिया, रेंज और हाइट दोनों बराबर है बोला। जब रेंज और हाइट दोनों बराबर है तो इसका एंगल कितना हो सकता, ये क्वेश्चन है। अब इसको स्मार्ट तरीके में मैं समझाऊंगा। अभी देखो यहां पर एक मटेरियल है मेरे पास, उसके अंदर से मैंने एक शॉर्टकट बनाया। अब रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट बोल के बोल रहा, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम क्या कर सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h बोल के डाल सकते हैं। ठीक है, इफ रेंज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h, दोनों के फॉर्मुलास यहां पे डाल दिए। दोनों सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मुला आएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/n। अगर रेंज 4 गुना ज्यादा है हाइट से तो क्या होगा, अगर रेंज 4 गुना ज्यादा है हाइट से तो आपको क्या होगा, सब कुछ कैंसिल होने के बाद, यानी कि 4/n, n के प्लेस में 4 आएगा ना तो 1 होगा, तो जब एंगल क्या होगा 45 डिग्री। अगर रेंज और हाइट दोनों बराबर है तो 4/n, n के प्लेस में क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। रेंज इज इक्वल टू हाइट है मतलब n के प्लेस में क्या होगा, n के प्लेस में 1 होगा। ठीक है, तो 4/1 क्या होगा, 4/1 होगा 4। अब उस वक्त में एंगल कितना होगा 76 डिग्री। अब ये सारे शॉर्टकट समझने के बाद इस तरह के प्रॉब्लम्स, जब रेंज इज इक्वल टू डबल टाइम्स ऑफ हाइट है या ट्रिपल टाइम्स ऑफ हाइट है या 4 टाइम्स ऑफ हाइट है, कुछ भी हो जाए, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमको करना कुछ भी नहीं है। तो रेंज इज इक्वल टू हाइट बोल के बोल रहा और हमारा फॉर्मूला n इक्वल टू h, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ क्या है n, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 4/n है। अब दोनों अगर सेम है इसका मतलब n इक्वल टू 1, तो यहां पर n इक्वल टू 1 अगर डाल दिए तो क्या होगा आंसर, tan इनवर्स ऑफ 4 होगा। अगर डबल डाल दिया, यानी कि डबल टाइम मतलब n इक्वल टू 2 डालेंगे, tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। तो इस तरह के है हमने तकरीबन 3-4 हजार शॉर्टकट बनाए हैं ताकि बच्चे जो है 2 महीने के अंदर भी अगर सही ढंग से मेहनत करें तो 100 to 120 ला सकते हैं। लास्ट ईयर लाए हैं। ठीक है दोस्तों, 40 सेकंड के सॉल्यूशन को 4 सेकंड में करना, ये कमाल की बात है। तो देखो यहाँ पर अभी सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। अगर कोई बॉडी ऑफ मास m1 अगर d डिस्टेंस हट गया तो सेंटर ऑफ मास को बरकरार रखने के लिए m2 को कितना मूव करना पड़ेगा। इसके लिए इतना लंबा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखो, रेशियो m1 d1 विल बी इक्वल टू m2 d2, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी d1 d दे दिया तो m1 d इज इक्वल टू m2 d2। अभी d2 मालूम करना है, d2 इज इक्वल टू m1 by m2 इंटू d। ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बी ऑप्शन।